Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing really fine with the grace of Allah Almighty. This video lecture is dedicated to the bookwork of chapter number 1, that is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. So firstly, we will be doing the MCQs part, and I am going to read out each MCQ and then make you write the correct answer or make you circle the correct answer. The first one is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar, "Go and repay him his loan and give him 20 saw extra." In this sentence, him refers to Rabi Zaid, Abu Sufyan, Hazrat Umar, Hazrat Usman. We have read this story and we know when Rabi Zaid treated harshly Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it enraged Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, and he sort of threatened Rabi, and resultantly Prophet said to go and repay him not only his loan but give him 20 saw extra. So in this sentence or in this MCQ, him refers to Rabi Zaid. The tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bound. In this sentence, the phrase knew no bounds mean that his tolerance was immeasurable for Muslims. His tolerance was not confined to Muslims only. His tolerance was restricted to Muslims only. His tolerance was confined to Muslims. So, knew no bounds. No bounds means no boundaries. So, his tolerance was for everyone, not only for Muslims but for non-Muslims. Not only for human beings but also for all the living creatures. Okay, the third option is the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "A Muslim is he from whose hands and tongue the Muslims are safe." This hadith means a true Muslim does not hurt Muslims physically and emotionally. A true Muslim does not badmouth or curse anybody. A true Muslim does not beat or injure anybody with his hands. A true Muslim does not trouble about anybody mentally. So, if we can see all the options, the first one talks about physically and emotionally. It covers both way, hand and tongue. On the other hand, if we see the second one, it only talks about cursing, that is about tongue. If we see third one, that is only about injury, that is about hand one. And the fourth option is again about टंग. जब हम बोलते हैं तो उससे ये होता है कि हम किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, और इवन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट हर्ट एनीबडी फिजिकली एंड इमोशनली, ये इस एग्जांपल में ये होना चाहिए था. द फोर्थ इज़ ट्रूली ही इज़ एन एपिटमी ऑफ टॉलरेंस, forgiveness, patience and compassion. The word epitome in this sentence means essence. The fifth one is the Rasul granted a general amnesty to the entire population of Makkah. They have underlined word general amnesty, और यह आपने इस्लामियात की किताब में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जनरल एमनेस्टी, या उर्दू में इसको कहते हैं आम माफ़ी का ऐलान. तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मक्का मुकरमा आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया. एमनेस्टी मीन्स पेशेंस. पेशेंस का मतलब होता है सब्र. फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना. टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त कर लेना. और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना. तो इसमें द बेस्ट ऑप्शन इज़ फॉरगिवनेस. उसके बाद अब देखें, आपका वोकैबुलरी पोर्शन है जिसमें पार्ट ए है. उसमें आपने क्या करना है, डिक्शनरी मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है और साथ में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने हैं. सो हेयर ऑन माई स्क्रीन यू कैन सी आई हैव फर्स्ट रिटन डाउन द वर्ड and then figure out under which parts of speech the particular word lies.
and then I have written down the meaning. तो पहला word है frightened. Frightened अक्सर औकात as an adjective आता है. मिसाल के तौर पर I have seen a frightened deer. अब you can see deer is noun or anything that modifies noun is called adjective. So in this sentence frightened is modifying the noun deer, hence it is adjective. और इसका मतलब होता है to terrify या फिर terrified. harsh अगेन एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग ब्रूटल होता है. ब्रूटल का मतलब भी जुल्म करना होता है, हार्श भी गुस्से से बात करना या जुल्म करना. टॉलरेंस बर्दाश्त को कहते हैं, पेशेंस और ये नाउन है. कॉन्वे का मतलब होता है कम्युनिकेट और ये वर्ब है. वायलेंस का मतलब अगेन ब्रूटैलिटी होता है यानी जुल्म और ये भी नाउन है. रिवॉर्ड एज अ नाउन और वर्ब बहुत तरह से इस्तेमाल हो सकता है और इसका मतलब प्राइस है. ऑनेस्टी, सिंसियरिटी दैट इज़ नाउन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंसल्ट टू डिसरिस्पेक्ट समवन एंड दैट इज़ वर्ब. अगेन आपका पार्ट बी है और इसमें भी आपने सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं. सिनोनिम्स का मतलब होता है हैविंग सिमिलर वर्ड्स. तो ट्रूथ हम सिंसियरिटी को कह सकते हैं. रूड हार्श होना, सिंसियर लॉयल, फियर टेरर, काइंडनेस बेनोवलेंस. काइंडनेस भी रहमदिली को कहते हैं, नरमी को बेनोवलेंस मोहब्बत प्यार को कहते हैं. फॉरगिव माफ़ कर देना. एक्सक्यूज़ भी हम इसी सेंस में इस्तेमाल करते हैं. आपने अक्सर कहा होगा इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी, या अगर आप मुझे माफ़ कर देते हैं. आर्ग्यूमेंट किसी के साथ बहस करने को कहते हैं, इसको आप डिबेट भी कह सकते हैं. स्वेल क्या होता है, आपकी जो भी चीज़ जैसे आपका फीट स्वेल हो जाते हैं तो वो बेसिकली उनका साइज़ वाइवा इंक्रीज़ हो जाता है. So this is all about vocabulary part. Now moving towards writing part. तो आपका पार्ट ए है पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, सबसे पहले दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है. एंड देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ दैट आर फर्स्टली यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस द टाइटल. अब जिस तरह यहाँ पे टाइटल है पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें हमें सबसे पहले जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है वो वर्ड पेशेंस है. उसके बाद पर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ से 2, 3, 4 एग्जांपल्स लिखनी है पेशेंस से रिगार्डिंग और फिर एंड पे हमने उसको सम अप करना है. तो जो भी आपका एक अच्छा राइटिंग पीस होता है वो इसी तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. उसकी इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है और कंक्लूजन होती है. इसके साथ साथ आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स या डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं. जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मोर ओवर, इसके अलावा हेंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इट इज़ मैंशनड. तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं. ट्रांजिशनल डिवाइसेस का पर्पस क्या होता है? इट कनेक्ट्स टू आइडियाज़, टू वर्ड्स, टू पैराग्राफ्स और इट मेक्स लॉजिक बिटवीन टू थिंग्स. तो अब मैं ये पैसेज पढ़ूँगी, पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आई हैव इंट्रोड्यूस द टॉपिक. बाय पेशेंस वी मीन शोइंग टॉलरेंट बिहेवियर टुवर्ड द पीपल एंड सिचुएशन दैट आर नॉट इन आवर फेवर. यह हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी है डेफिनेशन और उसको हमने अपने अल्फाज में लिख लिया है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एन एपिटमी ऑफ टॉलरेंस एंड पेशेंस. एपिटमी का मतलब होता है नमूना होना. तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉलरेंस और पेशेंस का नमूना थे. ही रिमेंड काम व्हेन कुरैश ओस्ट्रासाइज्ड हिम. अभी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब इस्लाम आया और सूरह अलग की पहले 5 आयत नाज़िल हुई तो आपके फैमिली मेम्बर्स ने इवन आपको क्या किया, मार्जिनलाइज कर दिया, अपने से जुदा कर दिया. तो आप उस वक्त भी काम रहे, पेशेंट रहे. एंड इवन प्लॉटेड हिज मर्डर. ना सिर्फ कुरैश ने आपके साथ जो है वो आपको जुदा कर दिया, इवन उन्होंने नाउज़ बिल्ला आपको शहीद करने का इरादा भी किया. एडिशनली
When Jewish Rabbi Zaid ibn Sana harsh treated Prophet, he repaid him with kindness. फिर अभी हमने पीछे ज़ैद इब्न सना की भी एग्ज़ाम्पल पढ़ी है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने हार्शली ट्रीट किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ रीपेड हिम बाय गिविंग 20 एक्स्ट्रा सा। ठीक है, उसके बाद मोरओवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड काइंडनेस इन द मैटर ऑफ ओल्ड वुमेन हु यूज्ड टू थ्रो ट्रैश ओवर हिम। अब ये एग्जांपल बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने बचपन से पढ़ा हुआ है उस ओल्ड लेडी के बारे में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन नबी जब वो बीमार पड़ गई तो नबी आपकी अयादत के लिए जाया करते हैं। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है नबी की पेशेंस की, काइंडनेस की। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बिसाइड इन द होली कुरान इट इज़ मेंशन दैट वन शुड हैव टू सीक अल्लाह's हेल्प थ्रू पेशेंस एंड टॉलरेंस। और कुरान पाक में भी हमें यही सबक मिलता है कि हमें पेशेंस से और सब्र से अल्लाह ताला की हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। कुरान इज़ फिल्ड विद द एग्जाम्पल्स ऑफ हिज पेशेंस। और पूरे कुरान पाक में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंस के बारे में पता चलता है कि आप किस तरह साबिर कदम रहे, इस्तिकामत से काम करते रहे। हेंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड पेशेंस, काइंडनेस एंड कंपैशन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो पेशेंस यानी सब्र के थ्रू इंसानियत के दर्द के लिए और इंसानियत की मोहब्बत में गुजरी। उसके बाद एक में बी पार्ट है दैट इज़ अबाउट द समरी, एंड आई हैव ऑलरेडी समराइज द पैसेज फॉर यू गाइस टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो वो आई हैव स्किप्ड दैट। इसका सी पार्ट आप देख सकते हैं, टॉलरेंस मीन्स टू एंड्योर द सिचुएशन एंड बिहेवियर दैट वन डिसलाइक्स। सबसे पहले इसमें अगेन हमने टॉलरेंस की डेफिनेशन दी। अनफॉर्चुनेटली इन द करंट वर्ल्ड पीपल हैव ज़ीरो पेशेंस, और अब करंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पीपल हैव वेरी लिटिल और नो पेशेंस एट ऑल। उसका नतीजा क्या निकला कि मैनी सोशल ईवल्स हैव टेकन बर्थ। क्यों बहुत सारी सोशल ईवल्स ने जन्म लिया? क्योंकि हमारे मुल्क में सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस, ब्लडशेड, anxiety, abusing, threatening and street crimes have become quite common। अब सब्र की कमी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लडशेड, खून खराबा, कोई किसी छोटी सी बात पे कत्ल हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद सब्र ना होने की वजह से एंजाइटी, दिमागी बीमारियाँ जो हैं वो भी क्रिएट हो रही हैं। हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, हम चाहते हैं कि आज हम रातों रात अमीर हो जाएं, और ये हमें परेशान रखता है, एंजाइटी की तरफ ले जाता है। एब्यूजिंग, सब्र ना होने की वजह से आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि सोशल लाइफ में भी इसी तरह हो रहा है। एब्यूजिंग, थ्रेटनिंग, एक दूसरे को डराना धमकाना, और स्ट्रीट क्राइम्स भी सब्र ना होने की वजह से ही हो रहे हैं। In order to eradicate the social evils, revival of tolerance and patience is quite necessary। और इन सब बीमारियों को मिटाने के लिए हमें जो सबसे पहला कदम लेना है वो खुद को साबिर बनाना है, और अपने फ्रेंड्स को भी। अब हमारी बुक के अंदर एक पैसेज दिया गया है, उसको हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से उर्दू में। तो पहले मैं इंग्लिश पैसेज पढ़ती हूँ और फिर मैंने इसकी जो ट्रांसलेशन की है I'll read out that for you as well। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर वर्ड बाय वर्ड आप इसके साथ अग्री करें। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी भी लैंग्वेज को एग्जैक्टली दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। उसका बेस्ट पॉसिबल जो भी बनता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। इफ़ यू कम अप विद सम गुड ट्रांसलेशन, और आप अगर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर देंगे तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। तो पैसेज में क्या दिया गया, टॉलरेंस मीन्स द एबिलिटी और विलिंगनेस टू एंड्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियन और बिहेवियर दैट वन डिसलाइक्स और डिसअग्रीज विद। अब क्या कह रहे हैं, इख्तिलाफ़ राय और नापसंदीदा रवैयों को हिम्मत और रजामंदी से बर्दाश्त कर लेना सब्र कहलाता है। पीपल हु हैव less of this ability easily fall prey to aggression, haste reactions, anger and all other negative attitudes। ऐसे लोग जिनमें सब्र का मादा कम पाया जाता है
बहुत जल्द गुस्सा, जल्दबाजी, तनाव और मनफी रवैयों का शिकार हो जाते हैं। Tolerance is one of the paths of winning Allah's will and happiness. सब्र अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने का एक रास्ता है। In Holy Quran, Allah has granted those who are patient that He will give them reward without measure. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के साथ बेपनाह एहसन अजर का वादा किया है। ओके, सो अभी हम नाउन का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताऊंगी। मैं नाउन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ। आप यहाँ से वहाँ पे जाकर नाउन के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर नाउन। तो पहला सेंटेंस है, अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। तो अब सिंगुलर नाउन था अ बुक, उसको हमने बुक्स कर दिया, और सिंगुलर नाउन था गुड फ्रेंड, तो हमने गुड फ्रेंड्स कर दिया। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ स्मॉल कार इज़ अ ग्रेट व्हीकल। तो इसको प्लूरल में करते हुए क्या करेंगे, स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। थर्ड सेंटेंसेस, आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम्स। नाउ दिस सेंटेंसेस इन द प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, इज द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। दीज ग्लासेस आर्ट फॉर दोज वुमेन टू वियर। ग्लासेस, अब ग्लासेस ये जो पहनने वाली ग्लासेस होती हैं, ये ग्लासेस ही रहती हैं। और अगर इसका सिंगुलर करेंगे तो वो ग्लास डिफरेंट चीज़ होती है, जो इसमें पानी पीते हैं उसको ग्लास कहते हैं। तो ग्लासेस का सिंगुलर और प्लूरल ग्लासेस ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, दिस ग्लास इज़ नॉट फॉर दिस वुमेन। दोस वुमेन ये प्लूरल था, दिस वुमेन ये सिंगुलर है। और द लास्ट इज द ब्रश इज अंडर द चेयर, ब्रशेज आर अंडर द चेयर्स। द पार्ट बी इज choose whether the following nouns are concrete or abstract nouns. So अगेन आपका जो मेरा नाउन वाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट किया, आप वहाँ पे जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। लव इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बुक इज़ अ कंक्रीट नाउन, गर्ल कंक्रीट, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट, माउस कंक्रीट, लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्ट, लैपटॉप कंक्रीट, पीस एब्स्ट्रैक्ट। Moving toward next question, choose whether the following nouns are countable and uncountable. तो अगेन आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। कॉफ़ी अनकाउंटेबल, टी अनकाउंटेबल, बॉय काउंटेबल, सोप काउंटेबल, टेबल काउंटेबल, कार काउंटेबल, हनी अनकाउंटेबल, कीबोर्ड काउंटेबल। Fill in the blanks with a noun, use each noun only one time. सो इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स ऊपर दे दी हैं, हमने इन नाउन को फिल करना है। आई डोंट हैव मच लगेज, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। लगेज सामान को कहते हैं, तो उससे हमें क्वेश्चन से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वॉन्ट टू नो, दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। पीछे टेलिंग की बात हो रही है, तो वी ऑलरेडी कम टू नो कि ये इन्फॉर्मेशन होगी। देयर इज़ अ रूम फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, देयर आर अ लॉट ऑफ फर्नीचर। ओके, ये भी समझ आ गई। वी हैव नो चेयर्स, नॉट इवन अ बेड और अ टेबल। वट डज आरिफ लुक लाइक, ही हैज़ गॉट अ लॉन्ग बियर्ड एंड वेरी शॉर्ट हेयर। हेयर्स कोई वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इट्स हेयर। ठीक है, हेयर सिंगुलर भी हेयर है और प्लूरल भी हेयर है। Moving towards the next question, complete the following sentences by using the following collective noun. For collective noun, yes, the link is in the description box. Go there and understand the concept of collective nouns as well. I am just making you fill this exercise. A swarm of locusts attacked the crops. A flock of birds is always a beautiful sight. They welcomed the chief guest with a bouquet of flowers. As we drove down the countryside, we saw a herd of sheep grazing in the fields. The gang of thieves has been arrested by the police. Moving towards the concept of noun phrase, I will create a separate video for you guys to make you understand the concept of noun phrase.
लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगी और बहुत ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि नाउन फ्रेज क्या होता है. नाउन फ्रेज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट लाइक नाउन. ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. सेम यही बात मैंने आपको कह दी. जैसे एग्जाम्पल्स है, स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल. अब स्प्रिंग टाइम, तो ये आपका स्प्रिंग भी नाउन है और टाइम भी नाउन है, लेकिन हेयर स्प्रिंग इज एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव और स्प्रिंग टाइम जो है वो कलेक्टिवली आपको मीनिंग कन्वे कर रहा है और दिस इज यूज्ड हेयर एज अ सब्जेक्ट, देयरफॉर दिस इज नाउन फ्रेज. बियॉन्ड वाज अ ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली. आपको पता है नाउन कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में नाउन फ्रेज इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और सेकंड में ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आई है. अब नीचे इन्होंने हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं. पिक आउट नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो फर्स्ट है, आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन. तो आवर टीम जो है, आवर टीम टू विन, द होल पार्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन फ्रेज. The second one is, do you know his age? His age in this sentence is noun phrase. Your coming poses a problem for us. A problem for us again is a problem for us is a noun phrase. His parents hoped for his success. Now in this sentence, his parents is subject and his success is object, and both are the examples of noun phrases. She would not admit her guilt. Her guilt in this sentence is an example of noun phrase. I hope you have understood all the book work. If you have not understand anything, you can ask me in the comment box. You can go back and check my lecture on nouns, and that will help you understand singular and plural noun, not exactly noun phrase. I will create a separate video for noun phrase later inshallah. And you can from my video on nouns you can understand collective nouns and uncountable, countable noun, and concretes and abstracts as well. That is all about this lecture. If you like the lecture, yes, you can hit the like button and subscribe the channel as well. If you have any queries, you can ask me, and you can also contact on my number that is on the thumbnails of so many videos. You can get my number from there as well. Thank you for staying in. Allah Hafiz for today.